We'll be starting today with current electricity lecture number 1. Before starting with current electricity, I'll define two concepts over here. One is static and other means dynamic. स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर रहेगी तो उसको हम स्टैटिक के नाम से जानते हैं. बॉडी एट रेस्ट स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट स्टैटिक, is also termed as electrostatic. And whenever anything moves, it comes under the category of dynamics. Fluid moves, fluid dynamics. Charge moves, electrodynamics. So static means at rest, dynamic means beta in motion. हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक करंट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, करंट इज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज. चार्ज gives you the electrical effect of a substance. Okay, suppose if I say that number of protons in a body equals number of electrons, I can say the body is electrically neutral. Number of protons and number of electrons are the same. But if a body has excess of electrons, we call it as the negative charge. And if a body has deficiency of electrons, we call it as which charge, beta? Which charge? Positive charge. The charge defines an electrical quantity of a substance. जब वो बॉडी न्यूट्रल रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम रहेंगे. अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे तो इट इज कॉल्ड एज विच चार्ज बेटा? नेगेटिव. एंड अगर वो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे या कम रहेंगे सो इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज. दिस मोर और लेस वी आर गोइंग टू डील विद अ चैप्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बट यहां पर अगर वर्ड चार्ज इस्तेमाल होगा तो चार्ज का मतलब होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, we try to understand what is electrical current. Can anyone tell me what is electric current? It is defined as flow of free electrons per unit time through any cross section of a conductor. Flow of electrons, but which electrons? Free electrons per unit time through any cross section of a given conductor. मतलब क्या? अगर हमने एक कंडक्टर लिया, एक वायर लिया, एंड यहां पर हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, एक खिड़की बनाई, एक विंडो बनाई, एंड आई एम लुकिंग थ्रू दैट विंडो that how many electrons are passing through this cross section per second. So suppose if I see that 5 electrons are passing through this window in 1 second, or 4 are passing. Okay,
कैन आई से 1 सेकेंड बाद जब मैंने देखा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे? 4. सेकेंड में देखा तो कितने पास हो रहे हैं? 4. थर्ड सेकेंड में देखा तो कितने पास हो रहे हैं? 4. So what is electric current? This only we define electric current, that is, it is flow of free electrons in a given time per second through any cross section of a given conductor. Current is denoted by the letter I, which is charge per unit time. Charge flowing through any cross section per unit time. But what is this charge comprising of? Can I say this charge comprises of number of free electrons per unit time? 4 electrons, 10 electrons, 1000 electrons, billion electrons. समझ में आ रहा है बात आपको? ये चीज है यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो। अच्छा, और एक चीज मैं क्या कहूं यहां से कि अगर मैं यहां पर खिड़की ना बनाऊं, इधर बनाऊं, विंडो यहां पर बनाऊं, so how many electrons will I notice coming out? 4. Because of law of continuity, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जाना चाहिए for the rate of flow. Understand? यहां से अगर 4 अंदर जाएंगे तो यहां से 4 बाहर आएंगे, तो यहां से 4 बाहर आएंगे. If you see a water tap which is connected to a pipe, अगर 1 liter is entering inside, then 1 liter has to leave also. This is called as law of continuity, law of steadiness. Okay. Suppose if I am giving water to the plants and 1 liter of the water is coming out per minute. If I keep my finger here, you can see the water will become fast because it wants to bring out 1 liter per minute. That's why it becomes fast. This is called as law of continuity. क्योंकि अगर मैं इधर फिंगर लगा दूं और वाटर वही रेट से स्लोली आएगा तो 1 लीटर तो बाहर नहीं निकलेगा, तो इनसाइड द वाटर विल कलेक्ट ना, and all the water will stop for continuity to remain. Okay, whatever is inflow that should be outflow. Whatever is inflow that should be outflow. Understood what's happening? तो हमने एक जगह क्रॉस सेक्शन को देखा और हमने नोटिस किया कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पासिंग, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल लीव. Are you understanding what's happening? This is very, very important. Second thing, I'll express current as a bicycle chain. ये बाइसिकल का चेन है, सपोज ऐसे. Understand? It's flowing. You pedal from here. You pedal. You are supplying what, beta? Energy. And this chain is carrying this energy from one place to another and giving it to the wheel, suppose. What are we interested in? We are interested in movement of the bicycle. We are not interested in the chain to move. This is just like a charge carrier. The carrier which is there is carrying energy from one place to another. अगर ये ऐसे बंद हो जाए तो will be called as open circuit. वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट यहां से टूट जाए तो एनर्जी यहां से यहां तक फ्लो नहीं होगी. Electrons are just acting like a postman which are carrying energy from one place to another. We are interested in what? Are we interested in electrons? No, we are only interested in the energy which is derived. That's why in घर में geyser, heater, toaster, AC, we utilize what? Energy. बात समझ में आ रही है आपको? And who are these energy carriers? Electrons in solids. In liquids, who are the carriers? Ions, positive ions and negative ions. In semiconductors, there are electrons and holes.
ऐसे अलग अलग कंसेप्ट्स में, अलग अलग बॉडीज में जरा अलग अलग चार्ज कैरियर्स. यहां पे द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है? और हमने यहां पर नोटिस किया कि हर क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे? 4 ना. Therefore this current is termed as बेटा डायरेक्ट करंट. 1 सेकंड बाद देखा तो भी 4, 2 सेकंड बाद देखा तो भी 4, 10 सेकंड बाद देखा तो भी 4. सो द ग्राफ ऑफ दिस विल रिजल्ट इन दिस ना बेटा. इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट. 1 सेकंड बाद देखा तो भी 4 था, 2 सेकंड बाद देखा तो भी 4 था, 4 सेकंड बाद देखा तो भी 4 था. Understood what's happening? This is termed as direct current. Getting it? वैसे ही there is alternating current also. What do you mean by alternating current? Alternating current is that current which continuously changes in direction and as well as magnitude. इसका मतलब क्या होगा? जब यहां पर हम खिड़की पर नजर डाल रहे हैं तो पहले सपोज 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेकंड बाद 3 इलेक्ट्रॉन, 4 सेकंड बाद 4 इलेक्ट्रॉन, 5 सेकंड बाद 5 इलेक्ट्रॉन, 6 सेकंड बाद 4 इलेक्ट्रॉन, 7 सेकंड बाद 3 इलेक्ट्रॉन है. इट इज हैपनिंग 2 1 0. देन इट विल स्टार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5. ऐसे होगा. दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट. यहां पर देखिए आप, इट इज 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. देन इट स्टार्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बस. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. दे आर ऑसिलेटिंग एट वन प्लेस ओनली. इससे क्या पता चलता है? हमको इलेक्ट्रॉन्स के चलने या न चलने से मतलब नहीं है. हमको क्या ट्रांसफर करना है? एनर्जी. इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन अ बिग क्यू ऑफ मूवी टिकट. बड़ा लाइन है एंड आई कम एट द बैक एंड पुश हिम. सब लोग पुश होंगे. क्या ट्रांसफर हुआ? एनर्जी. डिड पार्टिकल्स माइग्रेट? क्या ये उड़ के पहले पहुंच गया? ऐसे नहीं होगा. Pay attention. Did I by pushing reach the first? No. Did the particles migrate? No. What traveled? Energy. We require a transfer of energy. We are not interested in transfer of particles. Particles may be okay 6 घंटे बाद पहुंचे एसी में, हमको इंटरेस्ट नहीं है उसमें. जैसे मैं बटन चालू करूं मुझे एनर्जी ट्रांसफर करना है उधर. हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे चलते चलते इलेक्ट्रॉन एसी में जाएगा फिर एसी चालू हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. As soon as I start the button, energy should go. वो पुश जो है वो पहुंच जाना चाहिए उधर. स्टार्ट. तो इलेक्ट्रॉन्स चाहे पहुंचे या नहीं पहुंचे हमको इंटरेस्ट नहीं है उससे. दे आर जस्ट द पोस्टमैन. मैसेज उस तक पहुंच जाना चाहिए, शुरू हो जाओ. And that message is what? Energy. Because we are utilizing what? AC का energy. जैसे मैंने आयन से ऑन किया, आयन ऑन हो गया, the button starts. What transfers? Energy. Understand? ऐसे नहीं है कि सब इलेक्ट्रॉन्स अंदर से AC आयन में आ गए. ऐसे नहीं होगा. The chain has started. मे बी ये जो बाइसिकल का चेन है ये या तो पूरा ऐसे जा सकता है या तो टू और फ्रो भी जा सकता है ना. उसी के भी कारण एनर्जी ट्रांसफर होंगी. अगर मैं यहां पर एक विंडो बनाऊं, मैं देख सकता हूं कि दे कैन कंटिन्यूसली ट्रैवल. एक तरीका यह है कि दे आर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग. दूसरा तरीका यह है दे आर कमिंग टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो. उसी के भी कारण एनर्जी ट्रांसफर होंगी यहां पर. एंड द व्हील can utilize that energy. Understood what's happening? So this is AC and this was DC. Did you understand what's happening? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रहा है? This is electric current. Flow of free electrons per unit time through any cross section of the conductor. अच्छा फ्लो हो रहा है भाई. बात सुनो. फ्लो हो रहा है. हाँ हो रहा है.
ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का तो नाम सुना है सर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? which jump out from the shell. Those which are loosely bound to the nucleus and they jump out of the cell. Okay. Jump out of the orbits. Listen over here. एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ये इलेक्ट्रॉन्स है, सब ऑर्बिट्स में ऐसे घूम रहे हैं. ओके. और हमको पता है ये जो सॉलिड रहेगा, ये जो मेटल कंडक्टर है, इसमें द एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ऐसा नहीं है कि बिखरे हुए हैं, वन एटम देयर वन एटम देयर, ऐसा नहीं है. सब जॉइंट है, दे आर ओवरलैपिंग ऑल्सो. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है, कभी कभी इनको एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, और ये क्या करते हैं, इसको छोड़ के भाग जाते हैं. दे कम इनटू द कंडक्शन बैंड. विच बैंड बेटा? कंडक्शन बैंड. दिस इज टर्म्ड एज वैलेंस बैंड. Therefore they are also termed as valence electrons. क्या कहते हैं बेटा इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर इनको एनर्जी मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी, तो ये भाग जाएगी इधर से. दे आर इनसाइड द मेटल सरफेस ओनली, दे आर इनसाइड द मेटल ओनली, बट they have become loosely bounded now. These electrons are termed as free electrons. Understand? I'll give you an example. जैसे हम बचपन में थे, this was the parent, we were at home only, no? They didn't allow us to go anywhere. This is valence electrons, bounded. When you go to college, okay, ज्यादा हवा लग जाता है कॉलेज का, you start roaming here and there, you become very आवारा, right? So now you roam from one atom to another, but you are there in the metal surface. ऐसा नहीं है कि बाहर किधर चले गए, बाहर की दुनिया में, ऐसा नहीं. You are there in the atom only, but you are roaming from here to there to there to there to there. वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हमने फायदा उठाया और करंट जनरेट किया. इनको तो बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है न्यूक्लियस. ओके, आई एम द पेरेंट, यू आर नॉट अलाउड. जो बाहर जा चुके उनका नाम क्या पड़ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन. उनको हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजकर करंट जनरेट किया, और वो करंट हमने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में यूटिलाइज किया, एंड उसी के कारण हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह. एनर्जी बनाते तो कोई दूसरी कंसेप्ट से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनाते हैं हम लोग. बट एनर्जी को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहता है तो हम ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, जाओ. सपोज एक पावर प्लांट हमारा पवई लेक में है, वहां से एनर्जी बनी, पावर प्लांट से एनर्जी बनी, अभी हमारे घरों तक वो एनर्जी लाना है. यू हैव टू ब्रिंग इट टू ग्रैंड रोड, यू हैव टू ब्रिंग इट टू नाना चौक, यू हैव टू ब्रिंग इट टू चनी रोड. कौन लाएगा? हु इज द चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स को हमने वायर में भेजा, जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ. ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेकर भेजा. इन दैट ओवरहेड वायर, याद है 25,000 वोल्ट का वायर, 10,000 वोल्ट का वायर, उनमें क्या है? उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स है जो एनर्जी लेकर जा रहे हैं. उनको कंप्रेस कर करके हमने एनर्जी के साथ में भेजा. एंड दे कम टू आवर हाउसेस, इधर आ जाते हैं, ये बोर्ड में है, ये बोर्ड में है, दे आर रेडीली अवेलेबल टू अस. Understand what's happening? We can utilize them. अच्छा, always remember one thing, that वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बहुत हाई पोटेंशियल पर है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी है उनके पास. हमेशा हर चीज को दुनिया में लो पोटेंशियल पे रहना पसंद है. You always have to have low energy. I'll go home right now, I'm very tired, I go to sleep. How will I sleep? Standing and sleeping, sitting and sleeping, or lying and sleeping?
I lie and sleep. Why? Because I like that position of potential energy. Minimum. This is my maximum potential energy. I don't like that. If I given a chance, I will lie down and sleep. Why? Because that is minimum energy. हमको एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं है. पे अटेंशन ओवर यार. Okay. If anyone gives me a chance to go home by bike or Mercedes, I will go by Mercedes. Why? Because a lot of comfort. Minimum energy. तो इलेक्ट्रॉन्स जो इतनी बहुत ज्यादा एनर्जी भरकर आ रहा है, उनको भी कम एनर्जी पर जाना पसंद है. और कम एनर्जी कहां है? कम एनर्जी अर्थ में. 0 वोल्ट अर्थिंग जो करते हैं ना हम लोग, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? 0 वोल्ट. हमारे घरों तक तो आ गए इलेक्ट्रॉन्स. हमारे घर तक इलेक्ट्रॉन्स आ चुके. हमने क्या किया? ओके, पे अटेंशन ओवर हियर. आई जस्ट एक्सप्लेन. ओके, ये जो चीजें दोनों लाइव वायर के लिए बराबर है. यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ये कौन सा वायर? ये कौन सा वर्ड? अर्थ. हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला? भाई तुमको किधर जाना पसंद है? नो, दे वांट टू गो टू लोअर. व्हाट डिड आई से राइट नाउ? एवरीबॉडी लाइक्स टू गो एट 0 पोटेंशियल. मिनिमम एनर्जी जाना है. वो थक चुके हैं पवई लेक से इधर आके, कंप्रेस्ड एंड बहुत ज्यादा एनर्जी से साथ. नाउ दे वांट टू स्लीप. हमने उनको क्या बोला? भाई आपको कहां जाना है? आपको इधर जाना है, आपको अर्थिंग में जाना है. आप एक काम करो. ओके, आई विल पुट दिस प्लग इनसाइड. आप इस रास्ते से आओ अंदर. अंदर जाओ डिवाइस में. जो एनर्जी आपके पास है ना, वो इस डिवाइस को दे दो एंड आप अर्थ में चले जाओ. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? दिस इज द कंसेप्ट हाउ वी टेक द एनर्जी. यही प्लग अगर हमने गीजर में लगाया या हीटर में लगाया या आयन में लगाया, तो व्हाट हैपन? दे विल गो, दे विल हीट अप द आयन, दे विल गिव द एनर्जी टू व्हाट? द iron, and they go to the earth and finish. Their story is over. They are sleeping now. Understand? फिर से आप उनको एनर्जी दो, फिर से कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ चार्ज कैरियर, नथिंग एल्स, which wants to go from higher potential to lower potential. You know, overhead wires पे 50,000 वोल्ट जब चलता रहता है, ओके, and एक आदमी okay came on the top of the train and stood and caught the wire, he will get a shock. You know why? Because all the electrons want to go where? Ground. They are looking for all the ways to go to the ground. इधर से जाना है, नहीं उधर से नहीं जाना है, इधर से तो रास्ता नहीं है. Because वो वायर्स के नीचे हमने पत्थर लगा दिए. पत्थर आ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर. तो बैड कंडक्टर तो उसको जाने नहीं देगा, बोले सीधा जाओ, ओके रास्ता उधर है, इधर नहीं जाने का. बट सपोज अ पर्सन कम्स, ही इज अ गुड कंडक्टर, सॉल्ट इज देयर, वाटर इज देयर, ही कैचेस द वायर. उन्होंने देख लिया, हाँ रास्ता मिल गया, चलो सब लोग, एवरीवन वांट्स टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड दिस इज हाउ all millions and trillions of electrons are passing through his body per unit time, and he gets a shock because all the electrons are looking to go from high to low potential. आपको बात समझ आ रही है? This is the concept of current. Whether it is direct current or whether it is alternating current, हमने उसको energy दिया and they are just a carrier. वैसे लिक्विड्स में कैरियर क्या होता है? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. यहां पर जो कैरियर्स है वो कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमने क्या पढ़ा? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने इस्तेमाल किया. ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है इधर से उधर, उनका फायदा हमने निकाला, उनको हमने एक डायरेक्शन में भेजा और उसका फायदा बना के हमने एनर्जी ट्रांसफर किया पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? यस, यू मस्ट बी नोइंग. ये क्या है? एम्पियर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? कूलॉम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? सेकंड.
These are all time pass things. Can I say current is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb passes through any cross section in 1 second? This is all you must be knowing. कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. So current is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows through any cross section per unit time. Did you understand what's the concept? Okay. Suppose if I take a wire which is not connected to any battery. इधर बात सुनना अभी पहले. हम एक बाजार से वायर लेकर आ गए, नॉर्मल वायर which is not connected to any battery or anything. एक वायर है हमने. ओके, ये वायर जो कनेक्टेड नहीं है, ये वाला वायर. Is it connected to any battery or anything? It's not connected. वैसे ये वायर है, it's not connected to any battery or anything. हमने इसके अंदर देखा माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा है. तो हमको क्या पता लगा? हमको पता लगा कि electrons which are there, they are moving randomly inside. ऐसे ऐसे. भाई बात सुनो इधर प्लीज. All are moving randomly. Nice. Like the molecules of the gas in the container. But whatever electrons are moving in one direction per second, that many electrons are moving in the opposite direction per second. मतलब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे जा रहा है तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे. So the net effect will become equal to what? 0. क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं. क्या करंट जनरेट हो रहा है? हाँ हो रहा है. बट they nullify each other. Why? Because the electrons flowing down and the electrons flowing up per second are the same. जितने राइट फ्लो हो रहे हैं उतने लेफ्ट फ्लो हो रहे हैं, जितने आगे फ्लो हो रहे हैं उतने पीछे फ्लो हो रहे हैं, जितने ऊपर फ्लो हो रहे हैं उतने नीचे फ्लो हो रहे हैं. The net effect is what? Beta 0. They move with a very high velocity. You know how much? 10 raised to 7 meters per second. And कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पता है आपको? There are 10 raised to 22 electrons per centimeter cube. करोड़ों, ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ऐसे ऐसे. बट उनका पैटर्न क्या है नेचर का? कि जितने इधर जा रहे हैं उतने उधर जा रहे हैं, जितने ऐसे जा रहे हैं उतने ऐसे जा रहे हैं. सो दे विल नलिफाई द इफेक्ट ना. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर करंट बनाना है तो दे शुड फ्लो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. हम लोग बोलेंगे सर ऐसे फ्लो हो रहे 1 करोड़, ऐसे फ्लो हो रहे 1 करोड़. नलिफाई हो गया ना इफेक्ट. सो दिस हैपेंस व्हेन यू डोंट कनेक्ट एनीवन टू अ बैटरी. ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं. दे विल नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट. एंड हाउ मच इज द नेट एवरेज करंट? 0 when it is not connected to any battery. अच्छा सर ये मूव क्यों होता है? इनको एनर्जी किसने दिया मूव होने के लिए? इनको मूवमेंट होने के लिए एनर्जी टेम्परेचर ने दिया. किसने दिया? दिस इज थर्मल एनर्जी. बट सर यू विल आस्क मी सर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? अरे भाई रूम टेम्परेचर हमारे लिए होता है, इनके लिए रूम टेम्परेचर नहीं होता है. इनके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है -273 डिग्री सेल्सियस. उधर ये फ्रीज होता है. अभी कितना डिग्री सेल्सियस है? 20, 30. तो वैसे ही 300 केल्विन है ना ऊपर. तो वो 300 केल्विन ऊपर की वजह से ऐसे ऐसे फ्लो होंगे. बट उनका पैटर्न देखिए कितना अच्छा है. जितने नीचे उतने ऊपर, जितने लेफ्ट उतने राइट. एंड द नेट एवरेज करंट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 0. डू यू अंडरस्टैंड? सपोज अभी हमने एक बैटरी लगाया, एक ओके मैंने ड्यूरासेल का बैटरी लेकर आ गया. यस और नो? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. सपोज मैं कहूं 1.5 वोल्ट. प्लीज पे अटेंशन. अभी What do you mean by positive? What do you mean by negative? पता ही नहीं है ना हमको. तो मैच कर रहे हैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव ओवर हियर मींस हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव ओवर हियर मींस लो. इसका मतलब होगा अगर ये 1.5 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है. अगर ये 2.5 वोल्ट है तो ये नहीं बेटा, ये 1 वोल्ट है. डिफरेंस कितना है?
डिफरेंस शुड गिव, ये समझ में आ गया बात? ये हमेशा जीरो पर नहीं है, ये लो है। इससे आपने इसको बना दिया नेगेटिव, मतलब आप दिमाग में सोच रहे हैं हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसे भी कुछ नहीं होगा। दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। सपोज दिस इज -2, सो दिस हैज टू बी व्हाट -3.5 वोल्ट। डिफरेंस कितना है देखो, 1.5। तो ओरिजिन आप किसको भी पकड़ सकते हो बेटा, इसको 0 पकड़ा तो ये क्या होगा, -1.5। इसका मतलब एक हाई होगा और दूसरा वाला लो होगा। जो प्लस होगा वो हाई होगा और जो माइनस होगा दैट विल बिकम लो। सो कैन आई से दिस इज हाई एंड दिस इज लो? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। इलेक्ट्रॉन्स को मैथ्स आता है क्या, प्लस एंड माइनस? नो, ही जस्ट कंपेयर्स कौन हाई है और कौन लो है, और दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 1.5। रिमूव योर मिसकंसेप्शंस व्हाट यू हैव स्टडीड इन स्कूल man। आपने पढ़ा माइनस मतलब माइनस ही होता है, प्लस मतलब प्लस ही, ऐसे कुछ नहीं होता है। द डिफरेंस शुड बी दिस बैटरी का ईएमएफ। अच्छा, इसके कारण क्या होगा, जब हमने ऐसे हाई और लो लगा दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम हाई टू लो। क्या सेटअप होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस विल बी डन मोर और लेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। अभी सिर्फ नाम याद करो। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आएगा। सपोज मैं वाटर फ्लोइंग, सपोज ये एक लेवल है, ये ग्राउंड है, ये हाई लेवल है और ये लो लेवल है। बॉडी कहां से कहां तक जाएगी? इफ आई लीव अ बॉडी देन इट विल गो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, ऐसे जाएगी। किसके कारण? सो कैन आई से देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड which is directed from high to low। अभी आप इसी का रेप्लिका इधर कॉपी करो। Which field is directed? Which field? What is the name of the field over here? Electric field which is directed from high to low। बोलो। Study nature, don't study names। इधर फील्ड है, इधर भी फील्ड है, कहां से कहां तक? हाई टू लो। इधर भी फील्ड है, कहां से कहां तक? हाई टू लो। नेचर सेम, अभी नाम अलग है, नाम आप याद कर लेना। नाम में क्या रखा है, सेम थिंग है। यहां पर कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये मास को खींच के नीचे लेकर जाता है। बट यहां पर थोड़ा उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आकर्षित होंगे? हाई पोटेंशियल। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव ऑपोजिट टू द फील्ड। सपोज ये एप्पल गिर रहा है, ये एप्पल है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसको किस तरफ लेकर आएगा? नीचे। बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या, कहां धक्का मारेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां धक्का मारेगा? इस तरफ। जैसे एप्पल को कहां बुलाया जा रहा है? इधर। वैसे इलेक्ट्रॉन्स को कहां बुलाया जाएगा? उधर। ड्यू टू विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल फोर्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन। मतलब एक फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। सबके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा, सबके ऊपर लगेगा। समझ में आ रहा है बात? Getting it? Getting it? इलेक्ट्रिक फोर्स सबके जा रहा कैसे थे? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली जा रहे थे, ऐसे रैंडमली जा रहे थे, बट उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा। जब हमने ड्यूरासेल का बैटरी ऑन कर दिया, ये फोर्स इनको ऐसे धक्का मारेगा। तो क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर आई गिव यू अ सिनेरियो, आई एम ड्राइविंग माय कार इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ना? सही है क्या नहीं? एंड ये वेलोसिटी जो था बहुत हाई था, कितना था? 10:7। अभी एक फोर्स मेरे ऊपर एक्ट करेगा जो ऐसे, मैं एक स्पीड से गाड़ी लेकर जा रहा हूं ऐसे, अचानक मैंने स्टीयरिंग ऐसे घुमा दिया। स्टीयरिंग इज व्हाट? फोर्स ना?
अरे फोर्स हमारी गाड़ियों में 3 तरीके के होते हैं, ब्रेक भी एक फोर्स होता है, डी एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटर भी एक फोर्स होता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स, स्टीयरिंग भी एक फोर्स होता है, डायरेक्शन चेंज करने वाला फोर्स है। फोर्स का काम क्या रहता है? ओके, एक्सेलरेट करना, डी एक्सेलरेट करना या डायरेक्शन चेंज करना, तीनों। दिस इज ऑल्सो फोर्स। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन? गाड़ी ऐसे जा रही थी, फोर्स ने ऐसे घुमा दिया, व्हाट विल हैपन टू द कार? Force it will rotate and then it will go. Direction will Yes. Direction will change. Anyone else? Correct it is. Direction will change. इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है। अगर आप ऐसे जा रहे हो और स्टीयरिंग अचानक ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा गाड़ी के साथ? It will drift. Very good. It will drift, and that only word is used over here. You are drifting your electron this direction. ऐसे कर रहे हो ना आप? Understand what's happening? ये वेलोसिटी का नाम हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. What is it termed as? Drift velocity. When the electrical force acts on the electron, the electrons will drift in this direction. अचानक ऐसे करके ऐसे नहीं हो जाएंगे. This is rubbish. गाड़ी अचानक ऐसे हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं होगा. If I am going straight and somebody acts a force in this direction, I will drift in that direction. Electrons are drifting in this direction, and this velocity is termed as which velocity, beta? Drift velocity. And the drift velocity which is there is about 10 raised to minus 3 meter per second. कोई बता सकता है पहली स्पीड कितना थी उसकी? 7 meter per second. अभी ड्रॉप हो गई, कितनी हो गई? सर ऐसे क्यों हो गया? ऐसे कैसे हो गया? इतना कम कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि नाउ एवरीवन इज ड्रिफ्टिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन. इसके लिए उसका जो स्पीड है वो क्या हो गया बेटा? कम हो गया. पहले दे वर गोइंग इन रैंडम डायरेक्शंस. अभी सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. द स्पीड हैज बिकम वेरी लेस, but the effect has become very large. Sir, how did the effect become very large? ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कितने स्पीड से चलाऊं? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड ऐसे चलाऊं, क्या मुझे लगेगा? कुछ नहीं लगा. okay. अभी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 मिलीमीटर पर सेकंड से चलाया. ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं भाई? 10 raised to 22 ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं. क्या उसका इफेक्ट बहुत जोरदार रहेगा? हाँ रहेगा. I'll give you an example. इसको मैंने पेपर से ऐसे सर पे मारा, इसको लगेगा? नहीं लगेगा. बट एक पेपर का बंडल बना के ऐसे सर पे मार दिया, will he get hurt? Yes. And if I take 1 crore paper and hit him like this, yes or no? So will the effect be very large? Yes. I am just moving that by 1 millimeter per second. But एक नहीं है, करोड़ों है. पहले क्या हो रहा था? Randomly they were moving in any direction, the average current was 0. अभी ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेरी स्पीड, मगर उसका जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत जोरदार रहेगा. अर्थ जो रहती है, अर्थक्वेक के टाइम पे कितना हिलती है? बस वेरी स्मॉल. इफेक्ट क्या रहता है? सब खत्म हो जाता है. अर्थ इज जस्ट मूविंग 1 सेंटीमीटर दिस वे एंड 1 सेंटीमीटर दिस वे, फिनिश्ड, स्टोरी इज ओवर. क्या इफेक्ट है? बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बिकॉज द होल सिस्टम इज मूविंग. Getting it what's happening? ये इफेक्ट यहां पर होता है, and that will generate current, and that velocity is termed as which velocity बेटा? Drift velocity. अभी मैं drift velocity का जो कंसेप्ट है उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा. Did you understand this thing? मेरी बात सुनिए. Okay. Pass it on. Give it fast.
अरे बाबा, गिव इट फर्स्ट. Listen now, just pay attention now, please. इसी कंसेप्ट को हम लोग एक दूसरे तरीके से समझेंगे. देन वील कम बैक एंड वील सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हम लोग समझते हैं इसको रेन ड्रॉप्स से. यही चीज को रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल. हु पुल्स देम? ग्रेविटेशनल फील्ड. जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है. और आई कैन से ये जो फोर्स बनेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा. बराबर है? अरे बाबा, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द रेन ड्रॉप्स विल एक्सेलरेट. ये फोर्स के कारण क्या करेगी? वो एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे. और जब आपके सर पर गिरेगे तो इट विल फॉल विथ एक्सेलरेशन. मगर ऐसा नहीं होता है. व्हेन यू फील द रेन ड्रॉप्स इट इज वेरी प्लेजेंट. दैट मीन्स दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग. इफ दे वुड एक्सेलरेट यू हैव टू वेयर बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड गो आउट. इट विल पियर्स योर बॉडी. इट विल हिट यू लाइक बुलेट्स. पर हमको एक चीज पता है, जो चीज गिरती है वो एक्सेलरेट करते हुए गिरती है. एक एप्पल आपके सर पे गिरेगा तो एक्सेलरेट करेगा. वो कितना एक्सेलरेशन रहेगा बेटा? 9.8. पर रेन ड्रॉप्स का एक अजीब ही फंक्शन है वेयर इट डजंट एक्सेलरेट. इट फॉल्स ऑन योर हेड विथ कांस्टेंट स्पीड. एंड दैट वेलोसिटी इफ यू लर्न इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो. अभी उसका फंक्शन कैसे है? जैसे यहां पर ड्रिफ्ट है वो यहां पर टर्मिनल है. बात सुनो, नीचे कौन सा फोर्स है जो उनको खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा which is called as viscous force, which is kv, where k is a constant. And what does v stand for? Velocity. भाई बात सुनना अभी इधर प्लीज. जैसे वो नीचे जा रहा है क्या नहीं से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा था. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण द रेन ड्रॉप वाज फॉलिंग डाउनवर्ड एंड इट वाज एक्सेलरेटिंग. उसके कारण स्पीड जो है बढ़ेगा कि घटेगा? कम ऑन, व्हाट विल हैपन? बढ़ेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग हिम डाउन. उसके कारण ही विल एक्सेलरेट एंड उसके कारण द स्पीड विल इंक्रीज. एंड इफ द स्पीड विल इंक्रीज दिस फैक्टर विल आल्सो इंक्रीज. And at one moment both will equalize and the net force acting on the raindrop will become equal to 0. And when the net force is going to become 0 it will fall down with a constant velocity called as which velocity beta? Terminal velocity. That is how it happens. And when it falls with terminal velocity you feel it pleasant. फिर से सुनो एक बार. When a person jumps from a parachute jumps from a plane with a parachute, so when he falls down who is acting on his body? Gravity. और ऊपर he is continuously accelerating down. उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. अगर पैराशूट नहीं खुला तो he will be dead because he will hit the earth with a very high speed. But जब उसने पैराशूट खोला तो ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा कॉल्ड एज केवी. जैसे नीचे जाते समय स्पीड बढ़ता जा रहा है वैसे ये फैक्टर भी बढ़ता जा रहा है. एट वन मोमेंट ये बढ़ रहा है, ओके, स्पीड भी बढ़ रही है. एट वन मोमेंट दीज टू वैल्यूज विल बिकम same and the net force acting on the body will become 0 and this body will fall with a constant velocity called as which velocity beta? Terminal velocity. समझ में आ गई बात आपको? अभी इसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन में. सुनो, इलेक्ट्रॉन था इधर, फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ. What are the formula? What are the value of what are the force? Electric force.
पीछे एक दूसरा फोर्स एक्ट करेगा, केवी। ये किसके कारण होता है? दिस इज ड्यू टू कोलिजन विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस। जब वो इस तरफ जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और मेटल आयन से भी टकराएगा, और इसी के कारण एक फोर्स एक्ट करेगा, केवी, where k is a constant for a given metal and v is the velocity. Can I say, जब ये फोर्स एक्ट करेगा तो he will accelerate, तो speed will increase. When speed will increase, this factor will also increase. And at one moment, ये बढ़ता जाएगा, और at one moment they both will become equal, and equal होने के बाद the electron will move with which velocity? Constant velocity, and that velocity is termed as what velocity बेटा? Drift velocity. समझ में आई? तो if you see the law of nature, everywhere it is the same. इसको ऐसे धक्का मारा जा रहा है, बट पीछे से एक और एक फोर्स आ रहा है which is auto adjusting. जैसे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ेगा, and at one moment they both will become same, and the net force on the system will become zero. And when the net force is zero, body will start moving with constant speed, and that velocity is termed as which velocity? Drift velocity. और हर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे ही होगा, they'll move with drift speed. You understand what's happening? तो चाहे आप पैराशूट लो, चाहे आप रेन ड्रॉप लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन लो, that was under gravitational field, this is under electric field. सिर्फ एक फर्क है, they were moving in the direction of the field, this is moving opposite to the direction of the field, because ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो बॉडी था, correct?